हेलो आदाब सत श्री अकाल टू एवरीवन हु इज वाचिंग द शो। मैं हूँ आपकी आज की होस्ट तेजस्वी एंड टुडे वी आर गोइंग टू इंटरव्यू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग सेट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू शेयर स्टोरीज फ्रॉम देयर कॉलेज लाइफ। So let's begin. So the first from today's set of question is, who was your favorite professor and why? Share your favorite memories with them. In my whole college life, I encountered many brilliant, wonderful professors. But personally, I have two favorites. One is Arun sir and other is Apala ma'am of Geography department. Arun sir is strict sometimes, but helpful most of the time. While Apala ma'am is the sweetest teacher one can ever have. Well guys, if I talk about my favorite professor in college, then I always said that Jai Singh sir, who is from Philosophy department. He was always my favorite. Although his walking style, his teaching style, his speaking style, everything, his dressing style I like. And the best memories with him that whenever he told in the class that hey, blue t-shirt, red t-shirt, yellow t-shirt, stand up, what's going on, and that was a very interesting moment with him and he was always my favorite. वैसे तो एमएमवी के सारे प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी फेवरेट है लेलिना मैम। उन्होंने मेरी बहुत बार हेल्प की है। वो गुस्साती तो बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे से ट्रीट करती है सारे बच्चों के साथ। इनफैक्ट मेरे क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स थी वो फेवरेट होंगी। तो एक सीन मुझे याद आ रहा है, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मेरा सब कुछ नया एक्सपीरियंस था। मुझे पता नहीं था कि प्रोटेस्ट किसको कहता है, क्या कहता है, कुछ नहीं। तो क्लासेस खत्म करके 6 साढ़े 6 समथिंग बज रहे थे। मैं एमएमवी गेट के सामने खड़ी थी और देखा सामने प्रोटेस्ट चल रहा था। वो मेन गेट बंद करके रखा था सब लोगों ने, किसी को जाने नहीं देना। अब तो मैं कन्फ्यूज थी, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि इधर क्या करूँ। तो मैं एकदम सडनली वहाँ बैठी थी कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर लेलिना मैम आई उधर से, फिर वो बोली कि चलो बेटा मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। फिर वो रिक्शे से मुझे नरिया गेट से पूरा रविदास गेट तक, मतलब 2-3 घंटे लग गए उस दिन जाने में, इतना जाम लगा था। तो उस दिन मैम ने मेरी बहुत मतलब हेल्प। What will you miss the most about college and why? The answer is everything. जब कभी बारिश वाली वो शाम आएगी, जब कभी बारिश वाली वो शाम आएगी, उन एमएमवी वाले लम्हों की बहुत याद आएगी। That the bond which you share with your friends, especially on birthday parties, and hang out with them. I miss each and everything about it, be it VT, be it Madhuban, library, those congested classrooms, we all friends sitting in one bench and that too just under the fan, fighting with mess wale bhaiya for one more rasgulla, to getting scolded by attendant ma'am for reaching late at attendance, and above all, my friends, my sweethearts. I know they are big time headaches, but I still gonna miss them. Like everything we are going to miss because we have done a kind of graduation course of 1.5 years in which we were in the college. We will miss everything, the wanderings of the hostel, walking lonely in the MMB garden, talking with friends, going to the classrooms, even everything, each and everything we are. And after this, I am going to missing the teaching session the most, the teachers, and Central Library VT, and every day I spend in BHU is the most precious days of my life. कॉलेज का मतलब मेरे लिए एमएमवी है, BHU या पूरा बनारस, ये क्या पाना थोड़ा मुश्किल है। बट इफ आई टॉक अबाउट मिसिंग द मोस्ट, द वन थिंग श्योरली इज फ्रीडम। यस, फ्रीडम जिसने मुझे अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीना सिखाया। That taught me how to love and cherish every moment that comes in our life and never regret upon anything. और यार, कोविड बैच होने के बाद हम और आप ये जान चुके हैं कि रिग्रेट में असल में क्या होता है। और बाकी सारी चीजें तो हर उस बंदे से कॉमन है जो कभी ना कभी BHU में पढ़ने आया होगा, लाइक लंकेटिंग, घाट्स, कैंपस, टेम्पल्स, हॉस्टल मस्ती एंड व्हाट नॉट। बट for turning me into what I am, carefree, bindas and ready to go. Love you बनारस। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं जिसको मैं मिस ना करूं, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा मिस करूंगी वो ये कि अपनी फैमिली से दूर होकर जो फैमिली मुझे यहाँ मिली, उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। फिर चाहे वो लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस हो या एग्जाम की एक रात पहले पढ़ना, एक दूसरे के लिए मैगी और कॉफ़ी बनाना हो या टीचर की डांट एक साथ सुनना, बाथरूम में लाइन लगाना हो या आधी रात को किसी का दरवाजा पीटकर भाग जाना, सोते हुए कपड़ों में कॉलेज जाना और ऑफिस में घंटों लाइन लगाना, गंगा आरती साथ देखना और बीटी की कोल्ड कॉफी साथ में पीना, और एंड में हर गलती माफ करके गले लगा देना। चाहे कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आई वाज लेफ्ट विद मेनी सॉल्यूशंस। ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं जो आपकी फैमिली बन जाते हैं। एंड आई लव यू ऑल, आई मिस यू, थैंक यू। Well, BHU.
it is a home away from home. It is like heaven on earth, and I'm sure you all will agree with this. But if I had to choose my favorite thing of college, my favorite memory of college, I'm sure my answer will be hostel life. Hostel life was amazing. It was crazy. It taught me so many things. The people there made me who I am today. I made wonderful friends there. We were like family. We were like long lost sisters. Whether it be making Maggie at 3 a.m. or dressing up each other for dates or for events, or just dancing on Bhojpuri songs on everybody's birthdays, or fighting with mess wale bhaiyas, or criticizing mess wala food. Oh my god, each and every moment is worth remembering. रात को देर से सोना, वो सुबह वाली क्लास का अटेंडेंस मिस हो जाना, वो पोखरिया सर की क्लास में थोड़ा लेट होने पे दौड़ लगाना, वो 9-2 पे क्लास पहुंचना और एंट्री ना मिलने पे मुंह बनाना। जब कभी ऐसी कोई भी बात आएगी, थोड़ी सी भी, जब कभी ऐसी कोई बात आएगी, उन एमएमबी वाले लम्हों की बहुत याद आएगी। जब कभी ये बारिश वाली शाम आएगी, उन एमएमबी वाले लम्हों की बहुत याद आएगी। कॉलेज में योगदान रहा है, जैसे कि कैंटीन के चाय को कोसना दिन भर, जैसे कि वो लोग कोसते होंगे जो लोग सलमान भाई का राधे मूवी देखकर आए होंगे। फिर हमारा योगदान रहा है सीट को गंदा करने में, टीचर्स की बुराई करने में, मेस के खाने की बुराई करने में, डीजे में ऐसे नाचने में जैसे हमारी एक्स की बारात निकल रही हो, और कई सारी चीज़ें। तो आई वुड लाइक टू से कि मैंने कॉलेज की मिडियोक्रिटी को मिस किया है। आई हैव एंजॉयड माई मिडियोक्रिटी इन माई कॉलेज लाइफ एंड आई मिस माई सेल्फ, आई मिस माई सेल्फ बीइंग देयर, माई फ्रेंड्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। I miss most about my college is nature. In a rainy season, it's looked like a heaven. Roaming on overgrown grass felt like velvet. I also miss helped each other during a physics practical, eating together with friend while talking. The early morning, get ready for class just in 5 minutes. आई यूज़ टू थिंक दैट मुझे भी ऐसे ही लाइक शॉर्ट स्कर्ट पहन के वेयरिंग मस्कारा एंड लिप ग्लॉस ऐसे ही कॉलेज जाना होता है। लेकिन मैंने जब पता है एमएमवी पे पहली बार पहुंची तो मैंने देखा सब लोग ऐसे शॉर्ट्स और पजामा पहन के विद अ टी शर्ट विद मेसी हेयर, बस बिना तैयार होके ही जा रहे हैं कॉलेज। मुझे लगा नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे प्रॉपरली तैयार होके ही जाना है। लेकिन यू नो विद इन अ वीक और मैक्सिमम अ मंथ मैं भी ऐसे बन गई थी। लिटरली लाइक सुबह उठो जल्दी जल्दी 9:45 बजे किसी तरह, फिर मेस में जाओ जल्दी से, जितना हो पाए खा लो और ऐसे ही पहुंच जाओ। बस बाल को ना कंघी करने के लिए भी हम लोग के पास टाइम नहीं मिलता था लिटरली, बट बिलीव मी दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई रियली एंजॉयड दैट लाइक ब्रेकिंग द रूल्स वाला लाइफ। If you were Naina from YJHD, who would be Bunny, Aditi and Avi of your life? Actually, so first of all my roommate, जिसके बिना तो मैं अपनी कॉलेज लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। She is very special to me and स्वाति and अनन्या। इन तीनों के बगैर मैं एक भी मोमेंट्स वहाँ पे याद भी नहीं कर सकती कि जो मेरे सारे बनारस के मोमेंट्स हैं वो स्पेशल मोमेंट्स वो इन्हीं लोगों के साथ हैं। How was your third year different from your first year, and how has your journey been so far? So when I came to BHU, I was little bit innocent and I was little bit sensitive. So whenever if someone didn't talk to me or behave rude to me, I just cried for that. मैं सोचते रह जाती थी उन चीज़ों को लेके, and I had only one motto that मेरे को बस पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना। I will not make any friends. But by the time passed, I have many friends now and घूमना फिरना तो बहुत ज़्यादा हुआ ये चीज़ें। And I was little bit immature in my first year, but now the things are changed due to my responsibilities. Yes, यहाँ से मैंने खुद को बहुत एक्सप्लोर किया है। एमएमवी के 3 साल जाने कैसे ढल गए, मानो बसंत आए और चल गए। पहले साल तो बीएससी करके क्या होगा ये सोचने समझने में टल गए। बाकी उससे भी बुरा था दूसरा साल जब हमारा हाल था और भी बुरा। टाइम पे प्रैक्टिकल्स कंप्लीट ना करना और खाना टीचर्स की डांट, ये तो भैया हर रोज़ की थी बात। हम पढ़ाई को टालते रहे और नोट्स फ़ोन में डालते रहे। एग्ज़ाम्स के 2 दिन पहले होती थी पढ़ाई और फिर प्रैक्टिकल्स में भी हमारी इम्पॉर्टेंट थी। सेमेस्टर्स तो जैसे तैसे निकल गए। एमएमवी के 3 साल जाने कैसे ढल गए। वो खरी सर की डांट, दिव्या मैम का ब्यूटीफुल फेस और बॉटनी टीचर्स के फनी कमेंट्स ऑन आवर डायग्राम्स, सेंट्रल लाइब्रेरी के चक्कर लगाना, जाने कहाँ वो पड़ गए। एमएमवी के 3 साल जाने कैसे ढल गए। A funny, interesting moment throughout your college life that you will never forget. हाँ, वैसे तो हमारी कॉलेज लाइफ में बहुत सारी फ़नी इंसिडेंट हुए हैं, बहुत सारे ड्रामे हुए हैं, पर जो सबसे ज़्यादा फ़नी मोमेंट था जो मैं जूनियर से सही में शेयर करना चाहूँगी वो था हमारी एजुकेशन की क्लास। बहुत ज़्यादा पकाऊ होती है वैसे भी, सबको पता है। एंड शुक्ला सर हमारी क्लास ले रहे थे 2 बजे, एंड उसी टाइम में अपनी फ्रेंड को सीटी बजाना सिखा रही थी कि कैसे सीटी बजाई जाती है।
इतना ज़्यादा सिंपल है, टंग को प्रेस करो, सीटी बच जाती। एंड उसी टाइम में मेरे मुंह से सीटी बच गई गलती से, एंड सर ने देख लिया। उसी टाइम जो मेरी हालत ख़राब हुई, मेरा सर नीचे और मेरी जितनी भी साथ में बंदियाँ थी उन्होंने मेरे को सारा फाइल दे दिया कि ले जा बच्चा, अब असाइनमेंट तू ही सबमिट कर। मैं डरते डरते सर के पास गई, सर को सॉरी बोला। सर ने बोला कोई नहीं बच्चा, स्माइल करके सर असाइनमेंट लेकर के चले गए। उस टाइम जो मेरी हालत ख़राब हुई थी, उसके बाद जो हम लोग इतना ज़्यादा हंसे आकर के लास्ट पे बहुत ज़्यादा हंसे। मुझे ना सबसे ज़्यादा फील आता है जेके को पीछे था। एक्चुअली ना जो हम प्रैक्टिस होती थी क्रिकेट की, तो मैं ना ऐसे तो बहुत देर से सोती थी, तो मैं ऐसे भोर में उठ के चली जाती थी प्रैक्टिस के लिए, अकेले में चली जाती थी क्योंकि क्रिकेट की प्रैक्टिस अकेले पॉसिबल नहीं होती थी। उसके बाद मेरे रूममेट से कहते थे हाँ ऐसे तुम बहुत देर से सोती हो, बोले कि हाँ यार मुझे पता नहीं क्या है क्रिकेट से। तो फिर उसके बाद हम लोग लेट हुए। Share an embarrassing classroom memory that you will never forget. So this was in Feb, in when we were in first year, second semester was going on, and we were sitting in Amar sir's class. He used to teach us English. I don't know whether second year students got the chance or were lucky enough to attend his lectures, but he was one of the most charming person you can come across. He was good looking, he was very politely spoken, and my left shoulder was aching badly, not really badly, badly. So I don't know, maybe I was looking uncomfortable or what. He came up to me suddenly out of nowhere. He came up to me and he asked with so much concern and so politely, कि बेटा क्या हुआ? Are you all right? I'm doing no justice to the way he said it, and I started crying. I am in the lecture. The teacher asked me if I was okay, and I started crying. So obviously the next reaction was taking me back to my hostel room, and my friends accompanied me. They applied pain relief cream on my shoulder. And all this while, I never got the chance or the courage to tell them that it was aching, but not as badly as everyone reacted. I started crying not because I was in so much pain, but because Amar sir asked me so politely and so nicely. So this is probably the first time you all are getting to know this. This was what happened today, that day. Thank you. सेकेंड सेमेस्टर में क्या हुआ कि हम सब क्लास कर रहे थे और उसी टाइम हमारे कुछ जूनियर्स प्रैक्टिकल चेक करवाने आ गए और वो क्लास एक स्कॉलर ले रहे थे। तो हम लोग को मौका मिल गया कि हम सर से छुट्टी ले लें। हम लोग बोले सर हम लोग जाएं, तो सर बोलते नहीं, समय होने से पहले कोई नहीं जाएगा। फिर हम सब लोग बैठ गए, पर पीछे जो हमारे कुछ फ्रेंड्स बैठे थे वो पीछे वाली गेट से 9-11 हो गए। पर उस दिन हम लोग लेट से आए थे तो आगे बैठे हुए थे, तो हम लोग को मौका नहीं मिला कि हम लोग भी निकल जाएं। तो बैठ के बोर हो रहे थे क्योंकि हम लोग कोई प्रैक्टिकल चेक करवाना था, तो जूनियर्स को ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए पहले उन लोग का चेक हो रहा था। तो क्या हुआ कि अब हम क्या करें, बोर तो हो ही रहे थे, तो सोचे फ़ोन निकाल के सर की एक तस्वीर निकाल लें। तो जैसे ही फ़ोन निकाल के उनका पिक क्लिक किए, मैं भूल गई थी कि मैं अपना फ्लैश बंद कर लूँ, और वो जैसे ही पिक क्लिक की फ्लैश उनके चश्मे पे गया और वो ऐसे घूर रहे हैं। और मेरे जो दोनों फ्रेंड्स थे वो अगल बगल भागे और मैं तो सीधा ऐसे कर ली, मैंने कुछ नहीं किया और सर एकदम घूरे जा रहे हैं। अच्छा हुआ कि वहाँ पे जूनियर्स थे तो सर नहीं कुछ बोले, नहीं तो सर तो मुझे टपका ही डालते। बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था। Have you ever been addressed as the bhauji of a stranger? If yes, share an incident related to that. देखा ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा चलो मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। स्पंदन में थे, मतलब लास्ट ईयर मैंने स्पंदन में पार्टिसिपेट किया था, तब मैं सेकंड ईयर में थी। तो वहाँ पे क्या होता है कि मेन स्टेज होता है, उसके जस्ट सामने ही छोटा सा एक स्टेज बना होता है वीआईपी के लिए। तो वहाँ पे हम लोग सारी लड़कियाँ खड़ी थी। प्रोग्राम होने के बाद जब रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है तो हम सारी लड़कियाँ वहाँ पे बैठी हुई थी। एमएमवी की थी, आर्य महिला की थी, वीकेएम की थी, हर जगह की थी, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ लड़के आते हैं और वो लोग आर्ट्स फैकल्टी से थे। बोले कि हटिए यहाँ से, आप लोग उतरिए, यहाँ पे हम लोग खड़े होंगे। तो हमने बोला कि हम खड़े होंगे मतलब क्या होता है, हम लोग पहले से यहाँ पे कहाँ लिखा है कि यहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी के लड़के खड़ा होंगे। तो कह रहे हैं 12 साल से हमारी परंपरा चली आती है। हम बोले कहाँ भैया, कहाँ 12 साल से, कहाँ अटके हुए हैं 12 साल से आप, ये क्या मतलब होता है, ठीक है। तो मतलब वो लोग ऐसे करने लगे कि नहीं आप लोग उतरिए, 12 साल से हम लोग यहीं पे खड़े हुए थे। तो कुछ लड़कियाँ उसमें से उतरने लगी और मैं थी एक सेकंड, मतलब मैं जब सेकंड ईयर में थी तो वहाँ पे एक थर्ड ईयर की दीदी थी वहाँ उस टाइम पे, और एक मास्टर्स की दीदी थी। तो सारी लड़कियाँ धीरे धीरे उतर गई, हम 3 ही बचे हुए थे बस वहाँ पे। तो क्या होता है, वो लोग बहुत ज़्यादा सिटी बजाने लगते हैं और ऐसे चिल्लाने लगते हैं भौजी भौजी, एमएमवी मतलब आर्ट्स फैकल्टी का नारा है, एमएमवी हमारा है। और ऊपर से वो लोग कलर भी डालने लगे हम लोगों के ऊपर बहुत तेज तेज। तो फिर हमारे कॉलेज की तुम लोग जानती होगी संध्या मैम जो है सिक्योरिटी ऑफिसर है वो, तो वो आती हैं बोलती हैं क्या हुआ। तो मैंने सब बताया मैम से कि मैम ये लोग ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं वो लोग। तो मैम बोलती हैं कि ठीक है बेटा तुम यहीं खड़ा रहो, देखते हैं हम क्या होता है। फिर उन लोगों ने धक्का देना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि और सोशल वाले तो साइड में बैठे थे, तो मैंने बोला कि देखो सोशल वाले कितने अच्छे हैं, वो लोग एक साइड से बैठे हैं। उसी टाइम पे तुरंत वो लोग एक नारा निकालते हैं कि एक अनेक में एक है, 8 सोशल एक है। भाई साहब सच हम बता रहे हैं कि कहाँ से आते हैं ये गुण, सच में हम सम्मान करना चाहते हैं इस गुण का।
ठीक है कोई बात नहीं। तो ये लोग बहुत बदतमीजी स्टार्ट कर दिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा। वो लोग यहाँ तक एक दूसरे को इतना धक्का दे रहे थे कि हम लोग के ऊपर आके गिर जाए। फिर बहुत सारे कलर फेंकने लगे वो लोग। तो जो हमारी फ्रेंड जो वहाँ पे थी और नीचे जाके बैठ गई थी, वो लोग बहुत ही ऐसे शक्ल बना रही है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बहुत इरिटेट हो रही है, बट कोई खड़ा नहीं हो रहा है। तो ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो हमारे जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं सुजीत सर, वो आते हैं और वो आते बोलते हैं कि तुम लोग उतर जाओ। पर हम 3 दीदी मतलब हम 3 लोग खड़े थे, एक मास्टर्स की दीदी थी और एक 3rd ईयर की, तब मैं 2nd ईयर में थी। तो मैंने सर से बोला कि सर क्यों, मतलब हम लोग क्यों उतरे वहाँ से, क्योंकि हम लोग MMV से हैं या मतलब कोई तो रीज़न होना चाहिए ना कि यहाँ पे क्यों उतरे। ये लोग VIP होते तो हम लोग उधर जाते तो वो VIP के लिए सीट था। ये लोग भी स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी पार्टिसिपेंट हैं, हम लोग को यहाँ पे खड़ा होना है। तो ये मतलब ये लोग क्यों उतारेंगे। तो क्या होता है उसके बाद सर बोलते हैं अच्छा ठीक है, और वो उन लोगों के बीच जाते हैं और कहते हैं कि अब कोई बदतमीजी किया तो यहाँ से घसीट के ले जाएंगे, प्रॉपर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है तो यही हुआ। उसके बाद खत्म हुआ प्रोग्राम। हम तीनों मतलब हम अपराजिता थी और एक मास्टर की दीदी थी, उनका याद नाम नहीं याद आ रहा हमको। हम तीनों वहीं पे खड़े रहे और आखिरी में वो लोग आते टाइम बोलने लगे मैम से, जो हमारी सिक्योरिटी ऑफिसर मैम थी, कि मानना पड़ेगा मैम इन तीनों लड़कियों की बहुत ढीठ है ये वो। हम तो मैम ने बोला ठीक है। और लेकिन मैंने ये बात क्यों बताया तुम लोगों को कि वो लोग कुछ नहीं कर पाए। ठीक है उनके डर से जो लड़कियां उतरी थी नीचे, उनसे मतलब सच में क्यों डर गया। और वो लड़कियां जो उनके डर से नीचे उतरी थी ना, बाहर जाके उनके साथ डांस कर रही। तो मैं उनकी नहीं कह रही हूँ कि ठीक है वो उनकी मेंटालिटी थी, पर तुम जूनियर जो आने वाले हो या फिर जो आए हो, स्पेशली तुम फर्स्ट ईयर्स में, ये बोलना चाहूँगी कि यार यूनिटी बहुत जरूरी है। ठीक है आर्ट्स फैकल्टी हो कोई फैकल्टी हो, वो लोग चाहे जो गलत काम करे या जो अच्छा काम करे, पर उनकी सबसे अच्छी बात यही होती है कि उनके अंदर यूनिटी बहुत होती है। गलत काम करे या सही काम करे, दोस्त के साथ खड़े होते हैं। तो उस दिन उन लोगों ने हम 3 लड़कियों को कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उस दिन अगर सारा MMV एक साथ खड़ा होता ना तो बात कुछ और होती। ठीक है तो मैं बस एक एडवाइस देना चाहूँगी कि चाहे जो भी हो MMV के साथ सब खड़ी रहना। ठीक है चलो बाय, बाकी मजे करो बहुत। Share your dearest memory as a group. What does it feel like to be a part of the COVID batch? डियरेस्ट मेमोरी डिसाइड करना तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, बट एक डेफिनेटली होगा सेमिनार्स का खाना खाना। सो हमारी क्लासेस मोस्टली 101 एंड 153 में ही चला करती थी। और हेरिटेज हॉल में जो है सेमिनार्स हुआ करते थे, और बाहर में गरम गरम पूड़ियाँ चना करती थी। तो हम किसी न किसी तरीके से जुगाड़ से तो खाना खा ही लेते थे सेमिनार्स का। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट का सेमिनार था और 2 साल फर्स्ट ईयर 2nd ईयर हमारा सब्जेक्ट रहा था हिस्ट्री। तो फिर हम लोग नहीं जा पाते हैं और हमारी फ्रेंड सौम्या जिसका सब्जेक्ट नहीं था, हम उसे भेजते हैं लाने। तो वो हमें दिखा कर गरम गरम पूड़ियाँ गुलाब जामुन खाती है दूर से, और हमारे लिए 1 बॉटल पानी लेकर के आती है लास्ट में। और बिंग कोविड बैच सो इट सक्स, इट रियली सक्स। तो मेरे लिए डियरेस्ट मेमोरी है 2020 की सरस्वती पूजा, जिसने सरस्वती पूजा का परिभाषा मेरे लिए बदल दिया कि सरस्वती पूजा होता क्या है। यार धार्मिक मतलब सरस्वती पूजा मीन्स मतलब दिमाग में पहले ही आता है ना कि अच्छा धर्म से रिलेटेड, बट हाँ धार्मिक तो था, सब कुछ सही था, बट जो सबसे अलग था वो था लाउड म्यूज़िक एंड स्पेशली भोजपुरी गाने पे डांस। यार मतलब बता नहीं सकते कितना अच्छा था वो मेमोरी में हमारे। बट अनफॉर्चुनेटली ये कोविड बैच था और ये हम लोगों का लास्ट ईयर है, और अभी 2 महीने में हम लोगों का सेशन पूरे तरह से ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। हम लोग नई जगह के एक नए स्टूडेंट होंगे कहीं भी, तो यस डेफिनेटली BHU को मिस तो करेंगे। कॉलेज बिना फ्रेंड्स के अधूरा है। हम से गांचे वाचे में जैसे सपोर्टिव और सेंसिबल फ्रेंड्स हो, ये नंदनी जैसे बबली जी। आज भी याद है मेरा फर्स्ट बर्थडे था फर्स्ट ईयर में, मेरे तीनों रूममेट्स के खाने के मैं साइड में खड़ी थी। इतना मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा बर्थडे, इतना तीनों लग रियली फनी। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, 2nd सेमेस्टर का टाइम था, उस टाइम 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें 40 to 45 सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे। लोगों के जहन में आग भरी हुई थी। उसी टाइम हमारे सीनियर्स ने एक गैदरिंग रखी VT BHU में, और उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें कैंडल मार्च, एक नारेबाजी, एक प्रोटेस्ट ISIS जैश मोहम्मद के ख़िलाफ़ करनी चाहिए। तो हम लोगों ने VT से लेकर के रविदास गेट तक कैंडल मार्च किया था। उस टाइम हम लोग फ्रेशर्स थे, छोटे थे, एंड हम लोगों का फर्स्ट प्रोटेस्ट था, तो हम लोगों को उतनी आती नहीं थी, बट हमारे दीदी भैया ने सपोर्ट किया एंड दे यूज्ड टू से दी स्लोगन एंड वी यूज्ड टू रिपीट आफ्टर देम। ये एक अच्छी बात थी जब हम लोग मतलब ये एक यादगार मोमेंट था प्रोटेस्ट का। थैंक यू। The time when the campus reopened for 1 month, and then we enjoyed that time, but the most important moment was when again the notice came that again the cases are rising and you have to vacate the hostels. So we were having 2 and 3 days in our hand to live our college life of the fullest. So उन 3 दिनों में ना हमें प्रेजेंट की चिंता थी, ना हमें पास्ट की चिंता थी, ना हमें फ्यूचर की चिंता थी। बस हम अपनी लाइफ को जी रहे थे क्योंकि पता था ऐसा मोमेंट फिर कभी नहीं आएगा, चाहे वो हॉस्टल में लेट नाइट एंट्री करना हो या फिर कोई भी शैतानी करना हो, 80 घूमना
घूमना हो, बोटिंग करना हो, या फिर जो भी बकेट लिस्ट थी उस 2-3 दिनों में हमने सब पूरा कर लिया था। हॉस्टल में कोई ऐसा इंसान नहीं था, कोई ऐसा ग्रुप नहीं था जो उस 2 दिनों में सोया हो कोई। और फिर सबसे मज़ेदार चीज़ ये थी कि आपके जितने भी फ्रेंड्स थे सबके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। हॉस्टल वाले दोस्तों के साथ, फिर सब्जेक्ट वाले दोस्तों के साथ, हर किसी को थोड़ा टाइम दिया, और वो 2 दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी अपनी लाइफ में। यू कैन से वो 2 दिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज टाइप के थे, बट इट वाज ऑसम। So that's all for today. It was lovely hearing from you all. We'll catch up soon with the next episode. Till then, Mahadev.